Hello guys, as we were discussing about the exercise of 14.5, which is distance between two lines. Two questions, first and second of this exercise we have discussed in the last video, and now three questions are remaining, which I am starting right now. So third question is, find the shortest distance between two given lines. This is the solution of the question number third, and the given lines are, equations are given here. First, both the equations are in vector formation, I plus 2j plus 3k plus lambda I minus 3j plus 2k. And the second equation, vector format, basically to find out the distance between any two lines we have three formation. First is, we can apply the formula, distance formula, which is based on the vector formation. Second is, we can use the Cartesian formation formula also. First of all, we'll convert this equation into the Cartesian format, and then we can apply the formula. वो डिटरमिनेंट वाला जो फॉर्मूला था, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, abc, a1 b1, c1 a2 b2 c2 c, ऐसे करके, ठीक है. और थर्ड जो मेथड रहता है, अपन एक क्वेश्चन करेंगे थर्ड मेथड से भी, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जो थर्ड मेथड है, उसको यदि अपन करें तो ये इस दो लाइन के बीच की हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो हम देखो एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसकी सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मैं इसमें वेक्टर फॉर्मेशन दे रखा है, तो वेक्टर फॉर्मेशन के लिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो वेक्टर ए यहां से क्या मिलेगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई माइनस 3j प्लस 2k. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए मैं a1 b1 कंसिडर कर लेता हूं. क्लियर. एंड सेकेंड इक्वेशन इज वेक्टर r इज इक्वल्स टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j plus k. Clear? So these two statements are given. A1, B1 we have calculated from the first equation, and now I am trying to calculate the value of A2 vector. It will equals to 4i cat plus 5j plus 6k, and B2 vector is equals to 2i plus 3j plus k. Clear? And our formula to find out the distance between both of the lines, d vector, this d for distance, b1 cross b2 dot vector a2 minus vector a1 upon magnitude of b1 cross b2 and modular symbol. And this symbol is only to change a negative value into the positive value. Clear? So one by one, first of all, I am going to calculate the value of b1 cross b2. b1 cross b2. Our result will be, क्या होगा देखो, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, ठीक है. b1 cross b2 जो कि हमें मिलेगा यहां से, डिटरमिनेंट रूल से अपन सिंप्लीफाई करते हैं, i, j एंड k. स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b1, 1 minus 3 2, 1 minus 3 and 2, 2 3 1, 2 3 and 1. Clear? Now simplify this one. I के लिए -3 and -6. Now minus j, 1 minus 4
and k, 3 plus 6, so minus 9i minus minus plus 3j, ये minus 3 होगा, minus 3 and minus plus 3j and 9, क्लियर है। अब हमें कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू मिली है हमें b1 क्रॉस b2 और इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81, 9 एंड 81। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये 2 ये आया 162, 171 अंडर रूट 171। अभी किससे कैंसिल हो रहा है? सॉरी, ये स्प्लिट हो सकता है क्या? स्प्लिट करने के लिए हम एक काम करते हैं, या फिर देखो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 3 के फॉर्मेट में बाहर आ जाएगा। चलो वरना रहने दो 171 और इसको लिखा जा सकता है, दिखाई तो दे रहा है ये 3 plus 6 जो हो रहा है ये भी हो रहा है 9 इंटू ये कितना बचा तो 9 का रूट हो गया 3 इंटू 90, ये आ गया मैग्नीट्यूड। यदि अपन ये माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, क्योंकि अंडर रूट में माइनस पॉसिबल नहीं है, माइनस होगा तो आया रहेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है a2 वेक्टर a2 माइनस a1। a2 वेक्टर इज दिस वन 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस a1 वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। Now open the brackets, 4i minus i is 3i plus 5j minus 2j is 3j and 6k minus 3k is 3k. This is the value of a2 minus a2। क्लियर है? अब ये सभी वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर दो यूजिंग ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला, ऑन अप्लाइंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला यूजिंग distance formula। The distance will equals to b1 cross b2, which is this one, minus 9i plus 3j plus 9k dot 333 3i 3j 3k upon under root 19 3 root 19। So our distance will become minus 27 plus 3 or 9 and plus 27 upon 3 under root 19। इससे कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 19। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप सो यू अंडरस्टूड। आप वीडियो पॉज करके आप इस आंसर सॉल्यूशन को कॉपी करें। इतने में क्वेश्चन नंबर 4 को राइट करता हूं मैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अपन ने क्या यूज में लिया, मैं सेकंड मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि सेकंड या थर्ड हो सकता है। पर फर्स्ट हो गया वेक्टर फॉर्मेशन, सेकंड हो गया कार्टेशियन, थर्ड एक हो गया कि अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर होंगी तो मान लो हमें ये कैलकुलेट करना है, यही तो चाहिए है ना। तो अपने पास मान लो कि लाइन की इक्वेशन दे रखी है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस z x1 y1 एंड z1 की प्लस लैम्डा a1i प्लस b1j प्लस c1 की। बात समझ में आई?
और वेक्टर R2 की बात करें तो ये होगी आपके पास x to I, y to j, z to k प्लस म्यू a to I प्लस b to j प्लस c to k। ऐसे कोई दो फॉर्मेशन हो सकते हैं जो पॉसिबल फॉर्मेशन है। अब ये जो वैल्यूज है इनको यदि अपन कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। किसी ने किसी भाई ये लैम्डा कहां जाएगा, लैम्डा के इक्वल होगा। सेकंड क्या होगी x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 is equals to z minus z2 upon c2 is equals to क्या गया, देखो ठीक है बात यहाँ तक। अब देखो ये जो चीजें हैं ये डायरेक्शन रेशियोज है किसके, इसके, और ये है a2 b2 c2, these are the direction ratios of this line। मानो कि ये इसकी इक्वेशन है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और ये इसकी है तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर। अब मैं पर्टिकुलरली ये कोई पॉइंट है मैं इसको मूविंग पॉइंट x, y, z ले सकता हूं और ये भी x, y, z ले सकते हैं अपन सेकंड इक्वेशन के लिए। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट, देखो जो थर्ड आता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, a1 लैम्डा प्लस x1, y इज इक्वल्स टू b1 लैम्डा y1 एंड z इज इक्वल्स टू c1 लैम्डा z1। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यू जाएगी x, y, z की वो होगी a2 म्यू प्लस x2, y इज इक्वल्स टू b2 म्यू प्लस y2 एंड z इज इक्वल्स टू c2 म्यू प्लस z2। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाला x कोऑर्डिनेट, दिस y1 दिस z, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बात समझ में। अब हम इसके डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, इसमें से ये माइनस करके x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहां से इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे हमें, और जैसे डायरेक्शन रेशियोज मिले मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, देखो ध्यान से देखना, a1 लैम्डा माइनस a2 म्यू प्लस x माइनस x2, ये फॉर्मेट आएगा x1 माइनस x2। इन दोनों माइनस करेंगे तो कौन सा आ गया, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, पर तो परपेंडिकुलर का केस लगाओ ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये केस, ये वैल्यू आई आपके पास इसके डायरेक्शन रेशियोज की, तो मैं इसको a1 कंसीडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे a1 इसकी वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्मूले के हिसाब से a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू अप्लाई करेंगे इसके कॉरेस्पॉन्ड इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के, और दोनों के रिलेशन से अपन लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे और इन दोनों कोऑर्डिनेट के फिर दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसलिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन है इजी, आप कर सकते हैं। तो मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा क्योंकि अपने पास ऑलरेडी दो मेथड है, दोनों से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कभी कभी कुछ सिचुएशन में भैया अपने पास टाइम है और हम करना चाह रहे हैं हम कुछ अलग से, देन वी हैव टू यूज दिस। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर क्वेश्चन है तो आप खुद से क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया। 4th जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। जो दे रखा है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस t इंटू i प्लस t माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t, ऐसे देता है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया r वेक्टर इज इक्वल्स टू i यहां से माइनस 2j एंड या फिर एक काम करो ब्रैकेट i माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk, ये फॉर्मेशन रहेगा। मैं यहां से t वाले वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा हूं और जो रैंडम है उनको अलग कर रहा हूं। i माइनस 2j प्लस 3k
प्लस टी कॉमन ले लो, यहां से टी कॉमन लिया तो मेरे पास बचा माइनस आई एंड प्लस जे -2 के। अब ये वही फॉर्मेट हो गया जो हम पहले करते आ रहे थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इज इक्वल टी आ गया है। और सेकेंड इक्वेशन जो है आपके पास वैसे है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5s + 1 है, s + 1 इंटू आई 2s - 1 इंटू जे -2s + 1 इंटू ये फॉर्मेट रखा है। तो यहां से वापस से वही मैं आई जे और के को सेपरेट करूं तो आई माइनस जे एंड माइनस के प्लस एस कॉमन लेना है, ले लिया, यहां बचा आई -2j एंड -2 और अब अपने पास म्यू की जगह पे क्या आ गया, एस आ गया। तो अब फॉर्मूला वही लगा दो बस, ये a1 वेक्टर b1 a2 एंड b2, तो इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इसको फर्दर सोल्व करें, आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, two equations are x minus 1 upon 2 is equals to y plus 1 upon 3 is equals to z। ठीक है बात है। तो पहले तो ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं। डेनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके डेनोमिनेटर में 0 आएगा। देखो आएगा तो ये हिसाब से बनेगा, लेकिन ये बनेगा क्या पहले तो ये समझना हमें। तो मैं एक बार इसको हटाता हूं और हमें ये पता है कि लैम्डा के इक्वल होता है, हाँ समझाने के लिए बता रहा हूं और बाकी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। तो इसका फॉर्मेशन आपने माइंड में, इसको 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और ये जो है सिंबल लगा के उसके आगे स्टोर कर दो। x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए भाई, लैम्डा तो है ही ना, तो डेफिनेटली लैम्डा तो रहेगा और फिर z के साथ में कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस में तो यहाँ पे प्लस लगा दो चाहे -0 लगा दो, और लैम्डा हट नहीं सकता तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो, इनके अकॉर्डिंग इसको भी। तो ये वापस इसको कैसे कर सकते हैं अपन, ये 0 इधर आएगा, z + 0 अपॉन लैम्डा को इधर रखना है अपॉन 1, ये बनेगा, या -0 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आया है, मैंने यहाँ पे यूज लिया पहली इक्वेशन तो ये देखिए, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z - 0 अपॉन सॉरी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास दे रखी है, x + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 1 कॉमा z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वल नहीं, ध्यान रखना कोमा है, कोमा से सेपरेट किया हुआ है। अब बात ये इसको, ये तो चलो ठीक है हमारे समझ में आ गई, अब इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे करें। तो देखो ये क्या फॉर्मेट रहेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 म्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये होगा y इज इक्वल टू क्या होगा 3 म्यू प्लस 2, और ये क्या दे रखा है z इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मेट क्या बनना चाहिए था, z - z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, चलो यहाँ पे म्यू, और ये a2 मान लेते हैं, और ये z को ये c2 कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 और इस 1 की वैल्यू, और यहाँ पे से 2 की वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मेट ये रखा है, हमें किसके इक्वल चाहिए, म्यू के इक्वल चाहिए, तो म्यू के इक्वल करो इसको, जबकि म्यू है नहीं इसमें कहीं पर, इसका मतलब इसको यूं लिख सकता हूं क्या मैं, z इज इक्वल टू 2 + 0 म्यू, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दोनों सेम ही तो है। इसको इधर ले आओ, z - 2 इज इक्वल टू 0 म्यू, z - 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा म्यू। ध्यान ये मत सोचना कि डिटरमिनेंट में 0 नहीं आ सकता है, कार्टेशियन फॉर्मेट है, यहाँ पर पॉसिबल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी जाएगा, तो ये आया z - 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू म्यू आ गया अपने पास। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं x + 1 अपॉन 3 is equals to y - 2 upon 1 is equals to z - 2 upon 0,
और ये अब किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल, ये भी म्यू के इक्वल, ये भी म्यू के इक्वल, तो तीनों ही म्यूचुअली आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर बात यहाँ पर। अब देखो या तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्मेट अप्लाई करते हो या फिर कार्टेशियन फॉर्मेशन अप्लाई करते हो, तो मैं इसके लिए कार्टेशियन फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए अपने पास हमें वैल्यू चाहिए पहले तो x1 y1 z1। x1 की वैल्यू जो यहाँ से मिलेंगी 1 -1 एंड 0, 1 -1 एंड 0। x2 y2 एंड z2, इनकी जो वैल्यू जाएंगे x2 के -1, y2 is 2 and z2 is also z2 की वैल्यू यहाँ से -1 2 and 2, ये वैल्यूज मिल गई हमें। a1 b1 c1, a1 b1 c1, a1 is equals to b1 and c1, a2 b2 and c2। a1 ये यहां से रेशियोज की बात हो रही है 2 3 1 3 1 0 3 1 0। ठीक है, मैंने वेक्टर फॉर्मेशन की बजाय मैंने कार्टेशियन फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया। फॉर्मूला क्या रहेगा, d is equals to x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ किसका, अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना यहीं से कर लो। इसके लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों का क्रॉस b1 c2 माइनस c1 b2 और स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो आप चाहे इनको पहले कर दो या इनको पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुक में इनको पहले करवा रखा फिर इनको करो, लेकिन माइनस होगी स्क्वायर होगा तो रिजल्ट वही आएगा। a1 c2 माइनस c1 a2 और स्क्वायर प्लस, और थर्ड में नीचे लिख देता हूं। अब इसके लिए a1 b2 b1 a2 और स्क्वायर, तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब इसमें ये सभी वैल्यूज प्लॉट करनी है, जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप शायद कर पाएंगे इसको फर्दर सॉल्व इजीली, क्योंकि सभी वैल्यूज आपके फ्रंट हैं। और ये सभी वैल्यूज यहाँ अप्लाई मत करना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाओगे, b1 ढूंढोगे c2 ढूंढोगे, सभी वैल्यूज यहाँ अप्लाई कर दो, यहीं से इसको सॉल्व कर लो, कंफर्ट जोन में रहेगा। और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को किस टाइप से अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप उसको कितना टाइम दे पाते हो समझने में। देखो सोल्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ एनी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट इज स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट, आप उसको क्लियरली कितना गेन कर पाते हो किसी स्टेटमेंट के पर्टिकुलर जो इंडिकेशंस होते हैं, जो आपको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, व्हाट इज द डिमांड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। हम क्या करते हैं, देखो पहले टारगेट देखो कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अच्छा ये टारगेट पे आ गया क्या, चलो यहाँ पे ले लेते टारगेट, हमें यहाँ से यहाँ रन करना है, यहाँ पहुंचना है। फिर वेज ढूंढो, ये अच्छा रहेगा, ये रहेगा कि ये रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है क्लियरली कि कहाँ स्ट्रगल है और कहाँ पे स्मूथ है, और क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या जो हमने वे सेलेक्ट किया है वो एकदम से परफेक्टली प्रूव्ड है या अप्रूव्ड है। तो ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए। और स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट 12th स्टैंडर्ड में हुआ, तो 12th स्टैंडर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, तो इतना इजी भी नहीं होगा तो टिपिकल भी नहीं होगा। इजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड, और टिपिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप स्टैंडर्ड के साथ में आपका भी माइंड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो उस आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का पावर, वो विल पावर आप में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप सो अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस।